onto that particular form. So the syntax is form elements and closing of form tag. Opening form tag, then form elements, then closing form tag. Then form elements are different types of input elements. Like आपके पास बहुत सारे अलग अलग इनपुट्स आप डिजाइन कर सकते हो HTML फॉर्म्स में. whenever you have to collect any information from the user, it is in the form of text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons, and many more that we know about. When we fill any form, there will be many provisions to enter our information or the user information into that particular input elements, जो कुछ वहाँ पे ऐड किया होता है या डिजाइन किया होता है. ओके, so the input elements are nothing but most important form elements, where we have to get the input from the user in the form of text, passwords, submit button, radio button, reset, checkboxes, type button, etc. So there will be the format of input type text, input type password, like this. HTML5 input types are added the different several input types. यानी ये तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो तो नॉर्मल आपके एलिमेंट्स है, लेकिन HTML5 will be given a provision that you have to add the different types of elements also in your web page, like color, then date time, local, email, month, number, range, search, telephone, time, URL, week, etc. So all these things we can add it into our web page form also, so that we have to give the provision to the user that we have to give the information in that particular formats. So इसका एक screenshot ले लो जैसे भी आगे हम डेमो लेने वाले हैं. So we have to add the HTML5 elements also in it, in our web form. Okay, so there will be the different provisions to add the user information into this particular format. So input type text. So first of all we have to add the text. So फॉर्म डिजाइनिंग की एक स्टेप मुझे करते जानी है. ठीक है, तो आपका इनपुट टाइप जैसे वहां पे रहेगा वैसे आपको वो प्रोविजन देनी है. जैसे अभी हमने अभी देखा कि इनपुट टाइप अलग अलग है मेरे, तो वो मुझे वहां पे ऐड करना है. ओके, राइट. देन वी हैव पासवर्ड. सेम जैसे आपका ये है टेक्स्ट का अभी जैसे देखा आपने, वैसे पासवर्ड का है. सो यू हैव टू गिव द इनपुट टाइप पासवर्ड, then it defines a password field. So your username, definitely it will be in a text format, and then user password will be name PSW. जहां पे आप वो प्रोविजन करेंगे वैसे आपका वो पासवर्ड जो है वो वहां पे डिफाइन किया जाएगा. So we'll see the demo of it. आपका यूजर नेम जो है वैसे ही रहेगा, आपका सिर्फ पासवर्ड जो है वो वहां पे चेंज होगा. ओके, वेट अ मिनट. What I added. Okay. Actually, this is the code where we have to add here user password, right? Okay. Then we have to input the password over there. Right. So in this way, we have to add the password. So it will take as a password as a yes.
some encoding text और PSW. Okay, means आपका जो encoding कोड रहेगा वहां पे पासवर्ड वो ऐसे दिखाएगा, because the characters in a password field will be marked as a asterisk or circle with the help of your password text or password input, right? Then submit. आपको सबमिट भी करना है वो, यानी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सबमिट बटन दे दिया है आपने, तो वहां पे एक्चुअली अभी भी वो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा. सो इट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर. आपको एक बटन लेना पड़ेगा सबमिट का, पहले वो वहां पे आपने ले लिया, देन इट विल बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट. यानी आप वो क्लिक करेंगे तो आपका जो कुछ यूजर नेम पासवर्ड है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो वहां पे स्टोर होना चाहिए. So it will take form action is equal to action underscore page dot php. First name break, input type text, then वो बाकी सारा जो रहेगा, नेम आपने फर्स्ट नेम डाल दिया, वैल्यू वहां पे इनपुट करनी है इमीडिएटली. देन लास्ट नेम इनपुट टाइप करेंगे आप टेक्स्ट, देन नेम रहेगा, लास्ट नेम, वैल्यू रहेगा माउस, देन इनपुट टाइप रहेगा सबमिट, वैल्यू होगी सबमिट. ओके, तो यहाँ पे आप कोई मुझे बताएगा जो फर्स्ट लाइन है फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php, इससे एग्जैक्टली क्या होगा सर आफ्टर सबमिट व्हाट फॉर्म का जो डेटा कहाँ जाना चाहिए? ओके, वहां पे फॉर्म का जो डेटा है वहां पे वो होना चाहिए. चलो अभी आपको अभी मैंने टेक्स्ट बता दिया, इनपुट बता दिया, चलो ये भी हम करेंगे. यू स्टार्टेड विद दी फर्स्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स ले लो, वैल्यूज ले लो, एंड देन वी हैव टू क्रिएट द सबमिट बटन एंड देन वी कैन सबमिट इट. चलो स्टार्ट. Yes, sir, but we have to write a PHP code for that. यस, For action method, we have to write a PHP code for that. So यस यस, हाँ नहीं, एक्शन मेथड वी हैव टू राइट अ PHP कोड, बट ये सिर्फ इतना ही करके वो हमें सिर्फ फॉर्म पे दिखाना है. ठीक है, सबमिट करेंगे तो एक्शन वो जो होगा वो तो बाद में सबमिट होगा. ये सिर्फ हमें यहाँ तक डिजाइन करना है, एंड देन वी कैन क्रिएट द कोड फॉर एक्शन पेज, एंड देन इट विल बी सबमिटेड विद द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक ही हमें करना है. वो एक्चुअली सबमिट बटन पे हम बटन क्लिक करेंगे तो वो सबमिट नहीं हुआ, बिकॉज वी do not write the particular code of action page dot php into that this particular form. और वहां पे मैंने अभी तक ये एक्शन पेज का डेटा लिखा नहीं है या कोड लिखा नहीं है, राइट? yes, sir. Okay, everyone understand the first line? Yes, sir. Only we have to mention these things so that it will be action underscore page dot php जो रहेगा वो बाद में हम रिटर्न करेंगे, राइट करेंगे, एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो हियर इनपुट टाइप रीसेट. अभी आपका रीसेट का एक्शन का जैसे वैसे आप रीसेट बटन भी यूज करेंगे, दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज. यानी मैंने वहां पे पुट कर दी और वो मुझे रीसेट करनी है, यानी वापस 0 पे दिखानी है, या मुझे दूसरी इनपुट डालनी है, वहां पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है. सो आई विल रीसेट दी बटन ओनली. ओके, तो वहां पे अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से कोड, सॉरी, so here your form action is equal to action underscore page dot php as it is, क्योंकि हम फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं और उसके एक्शंस वहां पे पुट करने वाले हैं. That's why the first line over there. Then first name will be text name, first name, then last name, and then lastly the last line contains input type is equal to reset. Correct? So we have to add the reset button also over there, so that मेरे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के जो इनपुट्स मैंने ऑलरेडी पुट किए थे उसको रीसेट करना है. आई have the next or the I have the insert the different values into it, first name and last name. So this is the provision to reset your particular values or to default values with the help of reset button. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Then आपका बटन ये थोड़ा सा देख लेते हैं सब हम, और बाद में फिर वो क्रिएट करेंगे. ओके, इनपुट टाइप बटन. आपका इनपुट टाइप बटन होगा, जो बटन आपको यूज करना है, डिफाइंस अ बटन. एग्जांपल यहाँ पे है इनपुट टाइप बटन. ऑन क्लिक आप उस पे क्लिक अलर्ट हेलो वर्ड. अगर आप वहां पे क्लिक करते हो तो इट विल बी और इट विल बी गिव द वैल्यू क्लिक मी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वहां पे आपका जो बटन होगा वहां से आपका वो क्लिक मी पे अगर आप वहां पे प्रेस करते हो, देन इट विल बी डिस्प्लेज योर वैल्यूज. Just wait a minute. Okay,
सो ये आपका बटन का हुआ, जहाँ पे आपको जो बटन लेना है वो वहाँ पे देना है। आपने वो बटन क्लिक करने के बाद आपका जो वैल्यू है वहाँ पे वो आउटकम में आना चाहिए या वो डिस्प्ले होना चाहिए। रेडियो बटन्स, आप रेडियो बटन्स भी वहां पे इंसर्ट कर सकते हो या दे सकते हो। इट डिफाइंस रेडियो बटन्स इन योर वेब पेज। हमने भी हम भी जब कोई वेब पेज या फॉर्म फिल करते तो वहां पे रेडियो बटन्स होते हैं। वी हैव टू सिलेक्ट वन फ्रॉम इट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू हैव टू select male, female, other. So we have to select only one option from that particular values. So here the form designing for the radio buttons is nothing but input type देने हैं आपको रेडियो बटन्स। आपको जितने सारे लेने हैं उतने सारे वहां पे कोड आपको लिखने पड़ेंगे। नेम, जेंडर, देन वैल्यू, वी हैव टू पुट दी वैल्यूज फॉर द जेंडर एंड देन इट विल बी चेक। आप कौन सा वहां पे चेक कर रहे हैं या टिक कर रहे हैं वो भी आपको वहां पे मेंशन करना है, सो दैट इट विल बी डिस्प्ले इन अ चेक फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि वहां पे मैं अगर क्लिक करता हूँ मेल पे तो वो इट विल बी चेक्ड। सो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा कि आपका मेल बटन जो है वो चेक हुआ है या क्लिक किया गया है। सो दिस इज द प्रोविजन टू ऐड द डिफरेंट रेडियो बटन्स इन आवर वेब पेज। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही ख्याल रखना है कि आपका इनपुट टाइप रेडियो रहेगा और उसका नेम और वैल्यू जो रहेगी, नेम तो एक ही रहेगा लेकिन वैल्यूज उसके चेंज होंगे, क्योंकि नेम में हम एक प्रोविजन दे रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर है तो अलग अलग जेंडर्स रहेंगे तो उसके लिए वैल्यूज उसकी चेंज होंगी। देन चेक बॉक्सेस, सेम एज वी डिस्कस इन रेडियो बटन। यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए जाएंगे हम। चेक बॉक्स लेट अ यूजर सिलेक्ट 0 और मोर ऑप्शंस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। वहां पे आप एक कोई तो भी चेक कर सकते हो रेडियो बटन में। यहाँ पे आप 0 और मोर ऑप्शंस वहां पे आप दे सकते हो या चॉइस दे सकते हो। सो यहाँ पे भी आएगा आपका इनपुट टाइप चेक बॉक्स रहेगा। नेम रहेगा व्हीकल 1, वैल्यू रहेगी बाइक और कार। व्हीकल 1 के लिए वैल्यू रहेगी बाइक, व्हीकल 2 के लिए वैल्यू रहेगी कार। सो जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक चेक बॉक्स के लिए आपके वैल्यूज यहाँ पे चेंज रहेंगे और उसमें से आपको 0 और मोर ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दी पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस। सो दिस विल बी somewhat difference rather than the radio buttons, right? So यहाँ पे आपको चेक बॉक्स जो है वहां पे डिजाइन करने हैं। ओके, सिर्फ इतना कर लो अभी, बाद में हम आगे का देखते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, sir. You can Yes, add sir. these things also. HTML file input type भी दे सकते हो, like you can enter the email as we provided the username, last name, then you have to provide the email, then telephone number, you have to define the number over there, then time। ये भी थोड़ा सा चेक कर लो या प्रोविजन कर लो। मैं भी साइड बाय साइड आपके साथ डिजाइन करता हूँ। ओके, यस सर। चलो स्टार्ट। So you have to create a form with username, password, then submit button, action button, reset button, then radio button, check boxes। बस इतना ही करना है। कल मैंने पोस्ट किया है ये फर्स्ट यूनिट का जो पीपीटी है, मैं जो आपको दिखाता हूँ वो ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है, सो दैट यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड यू क्रिएट योर होल पेज, और यू कैन क्रिएट योर असाइनमेंट्स। जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पे हम ले रहे हैं उसका भी आप रेफरेंस वहां पे ले सकते हो। एवरीवन इज डूइंग? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो 10 minutes। ट्राई टू ऐड एवरीथिंग यानी जो आपको समझ में आ रहा है, जितना हमने अभी पढ़ा उसमें से और आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये भी मुझे ऐड करना है, यू कैन ऐड इट, नो प्रॉब्लम।
Yes, roll number 34, Snehal. Yes, sir. Did you complete? So I'm doing the lecture on phone and simultaneously performing on the laptop. And you are not audible properly. Okay. चला अजून कोणाच झालंय? मनाली. Yes, sir. Hello, Sumaya. Wait. मनाली झालंय तुझं? Okay, sir. सर पूर्ण नाही झालं, थोडंच केलं. रितेश तुझं झालंय? Yes, sir. Okay. Just show me. Sir, Okay. this is for submit button. This is the radio process which we can do. Okay. Then after the submit button, we land on this page. Right. Action page. Because we haven't yet. Yes. ठीक है. And, It's okay. simple. यहाँ तक वो होना चाहिए सबमिट बटन के बाद. This is the password one. Yes. Try to add check boxes, reset button. Yes, yes. बाकी लोग दिखा रहे हैं तब तक आप बाकी चेक बॉक्स और रीसेट बटन भी ऐड करो. Okay, sir. Yes, or Sir. students will post on classroom. Okay, sir. The next one is we have the input attributes, the different inputs attributes we have to put. जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने दिखाया कि उन्होंने बाकी सारे भी attributes लेके वो values भी वहाँ पे उन्होंने put कर दी. So here we have the different input attributes like value, then read only, then disabled, then size and maximum length. जैसे अभी अभिषेक ने दिखाया कि अगर वो नंबर वहां पे फोन नंबर वहां पे पुट करते हैं तो डेफिनेटली दे यूजिंग अ मैक्सिमम लेंथ एज अ एट्रीब्यूट सो दैट दे कंसिस्ट दे हैविंग अ दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ फोन नंबर, राइट. सो ये सारे एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं हमें एलिमेंट्स में लगने वाले हैं. वो एलिमेंट्स में हमें वहां पे अगर वो वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे हमने नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम में या अलग अलग जहाँ पे मुझे और कुछ वैल्यूज वहां पे पुट करनी है पर्टिकुलर एलिमेंट, देन आई यूज अ वैल्यू. रीड ओनली वहां मुझे कई जगह पे करना होगा तो मुझे रीड ओनली एट्रीब्यूट देना है. कई जगह पे मुझे बाकी सारे बटन्स डिसेबल करने हैं और कुछ बटन सिर्फ इनेबल रखने हैं तो वो डिसेबल रखेंगे डिसेबल एट्रीब्यूट से. साइज वी हैव टू गिव इन सम प्रोविजन ऑफ एलिमेंट्स एंड देन मैक्सिमम लेंथ. Then for example the select element over here, the drop down menus, we know कि अगर मेरे पास एक drop down menu है तो उसमें से कुछ values मुझे select करनी है. So here we use a select element over there. So select element defines a drop down list. आपका जो select element है वो actually आपकी drop down list का जो एक particular attributes रहेंगे वो select करेगा. So here the code is like that, select name इज इक्वल टू कार्स. आपके कार्स एक सिलेक्ट एलिमेंट रहेगा, यानी आपका जो नेम है एट्रीब्यूट का वो कार्स है अलग अलग, और उसके बाद में ऑप्शन वैल्यूज आएंगे आपके ड्रॉप डाउन में, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे वो वहां पे आपको देने हैं. सो ऑप्शन वैल्यूज प्रोवाइडेड विथ योर नेम वॉल्वो, देन इट क्रिएट्स द वैल्यू एज वॉल्वो, then Saab, then Fiat and Audi. So all these values we have to put with their particular name. तो वो अगर वहां पे मैं प्रोवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली दे क्रिएटेड द ड्रॉप डाउन लिस्ट विद पर्टिकुलर वैल्यूज. सो ये सब वैल्यूज मेरे कार्स की आएंगी और वो कार्स की वैल्यू में से मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है विद हेल्प ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट. Okay, so here the provision that you have to provide the open tag with select then name is equal to जो आपको लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसकी बनानी है वो वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा. And then the different option values you have to provided with the car. वो हो गया आपका, एक्चुअली ये हो गया आपका सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू. अभी आपको मल्टीपल सिलेक्शन भी करने हैं उसमें, राइट.
तो उसमें से आपको कितने मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं वो आपको साइज डिफाइन आपका वहां पे करेगा. सो सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू कार्स, देन वी हैव टू प्रोवाइड अ साइज इज इक्वल टू 4 मल्टीपल. यानी जैसे आपने यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में दिखा कि हमें सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है विद द डिफरेंट वैल्यूज. यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल सिलेक्शन करना है. सो आई विल गिव द प्रोविजन दैट आई विल ऐड द साइज एट्रीब्यूट्स ओवर देयर विद सम वैल्यूज एंड द रेस्ट code is same. That is we have to add the values of that particular name. जो कुछ मुझे वहां पे सिलेक्ट करना है वो वहां पे उसके वैल्यूज तो मुझे देने ही पड़ेंगे, बट मुझे यहाँ पे उसकी साइज 4 और मल्टीपल मुझे यहाँ पे लिखना है मल्टीपल. Why it will be multiple? Because I want to select the different values of drop down list. Next, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट मुझे देने हैं. टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू मैसेज. टेक्स्ट एरिया होता है जैसे हमें एक पैराग्राफ या कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करनी है, या कुछ इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे देनी है, कुछ लिखना है या मैसेज वहां पे लिखना है, तो आई विल यूज अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट. रोज 10 कॉलम्स 30, वहां पे वो टेक्स्ट एरिया में एक्चुअली वो डिफाइन कर लेता है. वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यूज फॉर रोज एंड कॉलम्स. द वहां से दिया है टेक्स्ट एरिया में मेरा जो टेक्स्ट है वहां विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया. एरिया अभी आपको एक्चुअली हम जब फॉर्म फिल करते हैं तो एक्चुअली वो, लेकिन हमने वहां पे वैल्यूज पुट कर दिए है तो वो वहां पे टेक्स्ट एरिया में वहां पे डिस्प्ले कर दी जाएगी विथ यूजिंग अ रोज. सेम थिंग फॉर कॉलम्स. दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया. आपकी टेक्स्ट एरिया की विड्थ क्या है वो वहां पे डिफाइन करेगा. जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया है और उसकी कुछ भी विड्थ भी रहेगी या कॉलम्स भी होंगे with using a rows and columns, with using a row attributes. So here whenever we have to provide any message or whenever we have to create the text area for any message from the user, then we have to provide the text area element over there with the text area name is equal to message. We have to provide that particular area as a message. मेरे user से कुछ message आएगा, that's why it will be a double quote of message. Then I'll have the values rows and columns over there. The rows and columns having the specific values means we have to give the value as per user requirement. और जैसे मेरा टेक्स्ट एरिया बढ़ेगा उतना मैसेज वहां पे उसको यूजर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है. सो डिफाइन देयर पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स ओवर देयर एंड देन विल have the particular information or the text information in that particular area. That is called as a text area. So this is nothing but अभी पूरा एक फॉर्म डिजाइन हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद वो हम एग्जीक्यूट करेंगे. राइट. सो सी, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन apply dash now dot php. Okay, there will be two methods, get and post. Do you know about it, get and post method? Anyone? येस सर. गेट मेथड मध्ये जर आपण फॉर्म यूज केला तर आपल्या URL मध्ये जे काही आपला फॉर्म डेटा आहे तो पास होतो ऍज अ स्ट्रिंग फॉर्म मध्ये, आणि पोस्ट मेथड मध्ये तो पास होत नाही URL मध्ये. ओके, अच्छा. अजून कोणी गर्ल्स मध्ये? Yes. What exactly get and post? Yes, Sati. Yes, sir. You have any idea about get and post method? No, sir. Okay. अजून कोणी सांगेल? अभिषेक ने बोल दिया है, लेकिन और मुझे थोड़ा सा गेसिंग वर्क चाहिए आपसे. Why not I am giving the get method over there? Form method is equal to post action apply dash now dot php. Why not I am inserting the get, or why not I am describing the get method over there? सर मी सांगू. सर गेट रिक्वेस्ट आहे ना ती म्हणजे स्पेसिफिक डेटाला रिक्वेस्ट करतो आपण, गेट करतो म्हणजे. आणि पोस्ट आहे रीड ना करू ते शकतो आपण, असं म्हणू का आपण? रीड करायचं असं म्हणू शकतो का आपण? येस सर.
आणि जे ओके पोस्ट मेथड आहे ना ते आपण एंटर जे केलेलं आहे ना वेबसाईटवर ते सबमिट करतं फॉर फर्दर येस प्रोसेस. राईट. हा, मग आपण थोडस टेक्निकली मध्ये आपण ते लर्न करणारच आहोत, पण आपल्याला जर अगोदर फक्त बेसिक इन्फॉर्मेशन त्याची हवी असेल की एक्झॅक्टली त्याचं वर्किंग काय आहे, तर गेट मेथड जे आहे ते आपल्याला ऍक्च्युली रिडेबल एलिमेंट्स जे आहेत किंवा रिडेबल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती त्यासाठी वापरण्यासाठी आपण ते फॉर्म मेथड ती गेट म्हणून वापरतो. पोस्टला आपण जेवढ्या इन्फॉर्मेशन तिथे पोस्ट करणार आहोत किंवा डिस्प्ले करणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला ती मेथड तिथे यूज करायची. सो हिअर वी हॅव टू प्रोव्हाइड द इन्फॉर्मेशन विथ द फॉर्म. That's why this method is a post. Then input name, subject, type, hidden. मेरा जो ये हम execute करके देखेंगे, then I have the description about it. Then value class, मेरे subject का value भी वहाँ पे होगा, type भी रहेगा. Field set and legend. These are the two different tags over there. Academic information legend. Label for degree वो मैं आपको एक एक बताता हूँ. Then select name degree, then ID degree, then option values मैंने put कर दिए हैं degrees के. Then next label for student ID मैंने वहाँ पे put कर दिया. Type दे दिया मैंने वहाँ पे password, ID और password के साथ. Field set वहाँ पे कर दिया वापस. Field set और legend personal details. यानी मैंने क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको एक पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूशन, देन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ओके, सी ओवर हियर. दिसतंय सगळ्यांना? येस सर. येस सर. Yes, sir. सी ओवर हियर. दिस इज द एकेडमिक इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको कोड में दिखाया, एकेडमिक इंफॉर्मेशन एक वहां पे उन्होंने फील्ड सेट बना लिया है और उसमें लीजेंड यानी वो एक्चुअली टाइटल है, तो वो वहां पे मैंने डिफाइन कर दिया एकेडमिक इंफॉर्मेशन. यानी मेरी जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एकेडमिक इंफॉर्मेशन या रिगार्डिंग एकेडमिक वो वहां पे मेरी आनी चाहिए सब कुछ. तो डिग्री है, डिग्री में मैंने अलग अलग चेकबॉक्स अलग अलग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है. मास्टर ऑफ बिजनेस, MBA, देन बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस. Then I'll select anyone. Then student ID, I'll put 1, 2, 3, 4, etc. That will be na password. Then पर्सनल डिटेल्स अलग मैंने फील्ड सेट बना लिया है वापस पर्सनल डिटेल्स का, जहां पे सिर्फ मेरे पर्सनल डिटेल्स वहां पे आएंगे. देन फर्स्ट नेम, देन प्रवीण, देन लास्ट नेम, देन मेल एंड देन मेल आईडी एंड देन द डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन. देन आई विल सेंड दिस सेंड फॉर्म. ओके, अभी वो जाएगा आपके नेक्स्ट action.php पे, apply.php पे. वो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन सिर्फ यहां तक मेरा कोड जो है वो वर्क होना चाहिए. और क्लियर कर देता हूं मैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन रीसेट होगी मेरी. अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? येस सर. येस सर. Yes, sir. ओके, आई विल शो यू कोड अगेन. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट टाइप सब्जेक्ट, टाइप हिडन, वैल्यू क्लास. अभी यहाँ पे आप जाएंगे वापिस, तो मुझे क्या करना है कि जो कुछ इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे प्रोवाइड करनी है, डेफिनेटली इट विल बी इन हिडन फॉर्म. मेरा फॉर्म सबमिट होने के बाद सिर्फ वो जिसने मांगा है वहां तक ही वो जाना चाहिए, उसको रीडेबल होना चाहिए, राइट? देन फील्ड सेट लीजेंड, एकेडमिक इंफॉर्मेशन. लीजेंड इज नथिंग बट वन टाइटल, वो एकेडमिक इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे दे दिया है. फील्ड सेट यानी मैंने जो कुछ मेरी नीचे की इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको कोड में दिखाया एग्जीक्यूशन में, डिग्री और स्टूडेंट आईडी विच विल बी ना दैट पर्टिकुलर फील्ड सेट. सो लेबल फॉर डिग्री, ठीक है ना. अभी लेबल फॉर मुझे किस लिए लेबल्स बनाने हैं, डिग्रीज के लिए लेबल्स बनाने हैं. दैट्स व्हाई इट विल बी अ लेबल for degree. Then degree, I'll use a degree over there. Then select name, degree, ID, degree. मेरे जितने सारे डिग्रीज वहां पे क्रिएट होंगे वो मेरे आईडीज के साथ क्रिएट होने चाहिए. देन ऑप्शन वैल्यूज, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो मैंने वहां पे मुझे देने हैं वो मैंने सिर्फ वहां पे दे दिया, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये वैल्यूज वहां पे मैंने पुट कर दिए. देन नेक्स्ट मैंने ले लिया लेबल फॉर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी दे दिया मैंने. उसका वो वैल्यू जो रहेगा वो पासवर्ड में रहेगा. हमने इनपुट टाइप देखा पासवर्ड, वहां पे नेम दे दिया मैंने स्टूडेंट आईडी, सो दैट मेरा पासवर्ड जो रहेगा आईडी का वो आईडी जो रहेगा वो पासवर्ड में लिया जाएगा. देन अगेन आई विल हैव अ फील्ड सेट पर्सनल डिटेल्स. उसमें मैंने लेबल फॉर कर दिया फर्स्ट नेम और उसमें टेक्स्ट डाल दी, राइट? सेम थिंग फॉर लास्ट नेम ऑल्सो. देन आई हैव जेंडर, उसमें टाइप रेडियो, आईडी मैंने दे दिया, वैल्यूज भी वहां पे मैंने पुट कर दी.
वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही प्रोवाइड हो रही है, यानी हमें और कुछ अलग अलग लिखना नहीं है। अगर आप रेडियो बटन ले रहे हैं तो उसमें ही उसका आईडी डाल दो, उसमें ही उसकी वैल्यूज पुट कर दो, सो दैट योर कोड विल बी कॉम्प्रेस, उसको ज्यादा खींचना नहीं है। Then label for email, then I'll have the email ID with my ID values or the name of ID value. Then text area मैंने terms और columns के लिए जो अभी हमने देखा text area, वहाँ पे terms और condition कुछ मुझे डालने हैं तो definitely I'll use a columns and rows over there. And then I have submit button और reset value clear form. तो मैंने reset की value या मैंने reset वहाँ पे कर दिया, clear form वहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मेरी सारी information जो है वो पूरी clear हो जाएगी। Understand? Yes, sir. Okay, so यहाँ पे रुकते हैं हम, ऑलरेडी इट विल बी 11 o'clock. सो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वापस 12:30. सो विल स्टार्टेड विथ दिस अगेन विथ दिस पर्टिकुलर फॉर्म. ये हम वापस समझ लेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल्स, द नेक्स्ट कंसेप्ट. ओके, Okay, sir. Yes, sir. just wait a minute. I'll have the screenshot of your attendance. Till it is any problem, is any query from your end? All of you understand? Yes, sir. नाही कळालं मधुश्री? प्रॉब्लेम नाही आहे सर. अच्छा, प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, मग आपण परत नेक्स्ट लेक्चरला हे बघूया, परत एकदा समजूया त्याला. ओके, Yes, sir. दिस इज नथिंग बट जस्ट फॉर्म डिजाइन. तो एक एक चीज मुझे फील्ड सेट में वहां पे डिफाइन करके जाना है और वो मुझे आइडेंटिफाई करके उसको ऐड करते जाना है मेरे फॉर्म में. ओके, okay then, so we'll stop over here and then we'll meet again at 12:30. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.